My question to you is that in today's generation, people think that sadhu, sant, dhong hote and all these things. So, but what my question is, sir, still you manage to motivate thousands and crores of people worldwide. What keeps you motivating? क्या बात है. मैं तो ढोंगी नहीं लगा ना भाई. Not at all, Oh, sir. thank you. Not at all. I'm a simple small person. In Sanskrit there is a verse which says mukam karoti vachalam. Even a dumb man can speak. Panghum langhayate girim. Even a lame man can cross a mountain. Yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam. It's by the grace of Shri Guru and God that one can do what we are doing. And therefore, if you ask me what is my motivation to keep going, I don't even think I'm inspiring millions or crores, as you said. People are watching and people are hearing. It's not my knowledge. It's the knowledge coming from God. It's the knowledge coming from my Guru and so many other monks in the monastery from whom I learn. I simply act as a microphone. A microphone simply amplifies the voice of the speaker. So if there's something that's motivating people, it's not me. It's the knowledge and the power of that grace that is behind me, which is unseen to your eyes. You can't see that, but that's the life that I live. When you don't see me on screens, I'm in a monastery in a small little room. Every morning practicing my spiritual sadhana. Every morning connecting to God through the chanting of the holy names. Every morning I sit and listen to the other monks. I'm not only speaking, I sit there, I hear others, I learn from them. And I'm tremendously inspired by the picture that I showed you, Srila Prabhupada, his life. I'm tremendously inspired by his example. And of course my Guru Radhanath Maharaj, who tirelessly keeps on going and serving. If there's anything that motivates me, it's my chanting, it's my hearing, and it's the company of my Guru and other like-minded monks. That's what keeps me going. So if you have that company, you will also be well. Thank you very much. आज एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे. क्या हमें मोटिवेट होने के लिए कोई दूसरा इंसान चाहिए जो हमें मोटिवेट करे? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई एम ऑलरेडी मोटिवेटेड. तो फ्रेंड्स, वी डू रिक्वायर समवन, जो मुझे लगता है. और जब आप मेरी बात अच्छे से सुन लेंगे, समझेंगे, तो आपको भी यू विल ऑल्सो एग्री विद मी. सो वेलकम बैक टू जर्नी विद अनुज महाजन. तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी जब हम शायद छोटे थे. तो हमारी मम्मा या पापा हमें कुछ भी खिलाने के लिए, पिलाने के लिए मोटिवेट करते थे कि दूध पी ले, आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपको खेलना है तो आप खाना खाओ. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें मोटिवेट कर रही थी उन चीज़ों की, जो वो चीज़ें हमसे करवाना चाहते थे. देन आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू हुए, पढ़ाई शुरू हुई. देन अगेन कि आप पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे, लाइक सच थिंग्स. आपको अगर साइकिल लेनी है, आपको फर्स्ट पोजीशन लानी है, या आपको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, तो अगेन वी गेट मोटिवेट इन सम सेंस कि यार मेरे को साइकिल लेना है तो मुझे अच्छा पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं. तो देन आफ्टर कॉलेज जॉब करना है, अच्छा जॉब पाना है. तो अगेन हमारे जो प्रोफेसर्स है या हमारे जो मेंटोर्स है, दे हमें जाने अनजाने में दे मोटिवेट अस कि आप पढ़ो, आप अच्छे जगह जाओगे. सो मेरे ख्याल से सिंस आवर बर्थ हमें कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से मोटिवेट कर रहा है किसी न किसी चीज़ के लिए. तो आई थिंक वी डू रिक्वायर्ड any something like this, like we should have some career coach, we should have some person जो कि मेरे को मोटिवेट करे, मेरे को नीचे गिरने नहीं दे. अगर मैं नीचे गिर रहा हूँ तो मेरे को उठने की जो मेरी शक्ति है, जो शायद मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, वो मेरी जगह है. सो फॉर डैट वी डू रिक्वायर समवन टू मोटिवेट अस. क्या बोलते हो आप? डू वी और डू यू रिक्वायर?
एक क्वेश्चन है जो मेरे से ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में कोई ना कोई जरूर पूछता है, तो मैंने सोचा कि आज इस क्वेश्चन की डेप्थ में हम चलेंगे मिल करके, यानी कि आप जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं और मैं, हम लोग मिल करके इस क्वेश्चन की डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वो क्वेश्चन है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन की हम डेप्थ में चले, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी स्टडी के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। एक प्रोफेसर ने इस स्टडी को किया जिसमें कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि सारे 5th स्टैंडर्ड के थे और उनको पजल्स थी बहुत तरह तरह की सॉल्व करने के लिए। उसमें से कुछ पजल्स बहुत ही मुश्किल थी, कुछ बहुत ही आसान थी। उसके बाद में जब उन बच्चों ने उन पजल्स को सॉल्व किया तो उसके बाद में सभी बच्चों को एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छा किया। बस यहां पर एक छोटा सा फर्क था। आधे बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और बाकी के जो आधे बच्चे थे उनको कहा गया कि आपने जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया उसकी वजह थी आपका हार्ड वर्क। फिर उसके बाद में दोबारा से इन सब बच्चों को कुछ पजल्स दी गई सॉल्व करने के लिए, जिसमें से कुछ बहुत ही आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। अब यहां पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, उनको जब वो पजल्स मिली तो उन्होंने क्या किया, जो मुश्किल पजल्स थी उसको छोड़ दिया, आसान पजल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और उसमें भी कुछ देर बाद ही वो बच्चे बोर हो गए। दूसरी तरफ से वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आपने हार्डवर्क किया, उन्होंने सिर्फ आसान पजल्स को अटेम्प्ट नहीं किया बल्कि मुश्किल से मुश्किल पजल्स को भी अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। फिर उसके बाद में जब ये पूरी स्टडी कंप्लीट हुई तो उन बच्चों से पूछा गया कि किसको ज्यादा मजा आया इसको करने में। तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उनको मजा नहीं आया, यानी कि वो मोटिवेटेड नहीं थे। और वो बच्चे जिनको कहा गया था कि जो भी आपने किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से किया, उन्होंने ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि वो एंड तक मोटिवेटेड भी थे और उनको मजा भी आया। अब ये स्टडी जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं या हम टीचर्स हैं और अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस स्टडी में एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट निकल करके आया है। तो इस स्टडी में जो फैक्ट्स रिवील हुए उसको समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। हुआ क्या कि जिन बच्चों को कहा गया कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर नहीं था, उनके बाहर था। लोकस का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल, मतलब कि अगर वो स्मार्ट है, अगर वो इंटेलिजेंट है, तो इसमें उनका खुद का कोई रोल नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी तरफ से जिन बच्चों को कहा गया कि जो भी आपने अचीव किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से अचीव किया, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर था, यानी कि हार्डवर्क पूरी तरह से उनके खुद के हाथ में था कि अब उनके ऊपर है कि वो कितना हार्डवर्क करते हैं। और ये सिर्फ इस स्टडी में निकल करके नहीं आया है, इस तरह की और भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पर एग्जैक्ट यही चीज निकल करके आई है कि अगर हम खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ से चला जाता है, और ऐसा क्या होता है जब कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा इस वजह से, उस वजह से, उस वजह से, जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है। जब हमारा फोकस उन रीजंस पे नहीं होता है जिनकी वजह से हम वो नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उस जगह पर होता है कि जिस वजह से हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। आपके पास में दो ऑप्शंस है। एक, आप बोल सकते हो कि वो लोग, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहां पर बैठे हैं, या फिर उनके पास में कुछ था, किसी का सपोर्ट था जिस वजह से वो वहां पर है। अगर इसमें से ऐसा आपने कुछ भी बोला तो आप फंस गए। अब आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते उस काम को करने के लिए जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ से बाहर है। क्योंकि अब अगर आपके पास में वो है ही नहीं जो उनके पास में है, तो अब आप वो कैसे बन सकते हो जो कि वो बन चुके हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि जिस भी फील्ड में आप हो, उस फील्ड में जो भी टॉप पे बैठे हैं वो वहां पर है अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने स्मार्ट वर्क की वजह से, या जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसकी वजह से, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। उन्होंने भी मेरी ही तरह एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करी थी, जहां से कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो मुझ में और उनमें अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक है, वो है टाइम का, कि आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं भी उन्हीं की जगह पर हो सकता हूं या उनसे भी आगे हो सकता हूं जहां पर आज वो है। तो अब कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो हमारे पास में हमेशा ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि हम कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ दें,
और दूसरा कि कंट्रोल हम पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लें। एक के कंट्रोल हमारा बाहर हो, एक है कंट्रोल हमारा अंदर हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि आपका कंट्रोल कहीं बाहर नहीं होना चाहिए, आपके अपने ही अंदर होना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये वीडियो समर्पित है उन लोगों को जो अपनी जिंदगी में अभी इस वक्त बहुत मुश्किल समय और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तू पत्थर से बनी एक चट्टान है, दुनिया तुझे शीशे से कब तक तोड़ेगी। तू पत्थर से बनी एक चट्टान है, दुनिया तुझे शीशे से कब तक तोड़ेगी। तेरी औकात दुनिया के जुल्मों से बहुत बड़ी है, इसे दुनिया कब तक रोकेगी। बहुत सह लिया दुनिया के सितम, अब आखिर कब तक सहेगा। घर से बेघर हो गया, दुनिया ने भी कुछ कम ताने नहीं दिए, सब ने अपने हिसाब से तेरा इस्तेमाल किया। लेकिन जब तेरी बारी आई तो सबने तुझे धोखा दिया। अब तो दुनिया से कब तक धोखा खाता रहेगा। तू उस माटी का वृक्ष नहीं है जिसको नदियों ने सींचा है, तू तो उस बंजर भूमि का वृक्ष है जिसने बंजर माटी में पलकर भी मृत्यु से जीवन को खींचा है। बरसात में अंकुरित हो जाना बहुत आसान है, विजेता तो उसको कहेंगे जो सूखे बंजर में भी पहाड़ तोड़ के निकल जाए। अब भी तू उदासी के बादल लिए बैठा है, क्यों तू इन कांटों के ऊपर लेटा है। और अब भी तू क्यों बैठा है जबकि तेरी आजादी का समय आ गया है। तुझे अपने पैरों की जंजीरों को तोड़कर खुद में एक जिंदा पतंग बनना है। तुझे अपने लिए आवाज उठाना है, क्योंकि आखिर कब तक तू ऐसे रोता हुआ बैठा रहेगा। कौन आएगा जो तुझे इन अंधेरों से उजालों में खींच के ले जाएगा। तुझे तो अपनी राहें खुद ही रोशन करना है। और अब वो समय भी आ गया है। अब तू कब तक चुप रहेगा, कब तक चुप रहेगा। इतने दिन तक तू झुक झुक कर खड़ा हुआ, अब तू फिर से झुकने का शौक पैदा मत कर। तू खुद में महान है, तू धैर्यवान है, अब तुझे कोई कब तक झुकाएगा। तेरे परिचय के लिए तेरे शब्दों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे इरादे ही तेरा दबंग परिचय है। तू शांत होके भी एक दबंग आगाज है तेरे अच्छे समय की। गौर से देखना, आंसुओं के साथ उमंगे भी आती है। एक जमाने के बाद बंजर पे भी घटाएं छाती है। जो कदर ना करता हो तेरे जज्बात की, तुझे भी क्या जरूरत है उस जमाने के साथ की। बेखौफ होकर चलना है तुझे इन कांटों भरी राहों में, चाहे कितनी ही तन्हाइयां सजे तेरी इन बाहों में। जिस वक्त तेरा खुद पर दृढ़ विश्वास होगा, उस वक्त में कायनात में एक नया आगाज होगा। ऐसे झरने की तरह आंसू बहाने वाले इंसान, तेरी औकात तो उतने जुल्म सहन करने की है जितने जुल्म तो शायद इस दुनिया में बने भी नहीं होंगे। अपने इरादों की बुनियाद को देख, ये समंदर से भी गहरी है। चीखना बंद कर दर्द के मारे, क्योंकि ये दुनिया बहरी है। जब्त कर इस आग को तेरे सीने में जो जल रही है। लिख दे ऐसी कहानी जो अब तक अनकही है। मेहनत की भट्टी में जलने से मत डर, क्योंकि हमने भट्टी में लोहा तपते देखा है। और निखार दे हर उस एक पत्थर को जो तेरे पे दुनिया ने फेंका है। अपने बिखरते हुए जज्बात को संभाल के रखना, कभी काफिले आएंगे पीछे, ये बात याद रखना। अरे तू सागर से भी ज्यादा गहरा बन, फिर देख दुनिया के द्वारा फेंके गए कंकड़ से तुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे ऐसे तू कब तक बैठा रहेगा। अपने हालातों के सामने झुकने की बजाय अपनी तरक्की में इतना झुक जा कि दुनिया खुद मजबूर हो जाए तुझे अपने सर का ताज बनाने पर। अपना आसमान तो खुद तय कर, मेहनत के दम पर अपनी जीत निश्चित कर। जब भी आपको यह लगे कि बस अब इससे ज्यादा और नहीं सहा जा रहा, तो एक बात याद रखना कि कमजोरी वक्त का गुण है, आपका नहीं। कमजोरी वक्त को शोभा देती है, आपको नहीं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शुरुआत में आपको लगेगा कि यार मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। आप थोड़े दिन और मेहनत करोगे और आपको फिर लगेगा कि यार मैंने कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, और फिर थोड़े दिन बाद और मेहनत करोगे, और अब एक निर्णायक समय होगा आपके सामने, और आपके अंदर से आवाज आएगी उस वक्त की यार आपको उस काम को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग उस समय उस काम को छोड़ देंगे। इतने दिन मेहनत करके 2-4 बार हार के आप उस काम को छोड़ देंगे। कड़वा सत्य है। सफलता का एक कंट्रोवर्शियल नियम है जो मेरे हिसाब से तो काम करता है, बाकी आप पर काम करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता, वो आपकी समझ है। मेरे हिसाब से जब हम जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो शुरू में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। आपको मिलता ही नहीं, आपको कुछ नहीं मिलता जितनी आप मेहनत करते हो। फिर थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होता है, लेकिन अब भी उतना नहीं मिल पाता जितनी आप मेहनत करते हो। फिर काफी समय बाद में एक दौर ऐसा आता है जब आपको उतना मिलने लग जाता है जितनी आप मेहनत कर रहे हो उस टाइम पे। लेकिन अफसोस कि हर किसी में इतना संयम नहीं होता कि वो इस लेवल तक वेट करे। इसके बाद जब थोड़ा और समय बीत जाता ना, तो अचानक से बहुत सारा मिलना शुरू हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस लेवल में पहुंच जाते हैं। और इसका एकमात्र रीजन क्या होता है पता है? कि आपने उस काम को छोड़ा नहीं। बहुत ही सिंपल नियम है कि जो काम आज आप कर रहे हो ना, उसको आपको कई सालों तक करना पड़ेगा। और अलग अलग तरह के दौर के बाद भी ऐसा दौर आएगा जब आपको वो सब मिलेगा, जब आपको वो सब हासिल होगा जो आपने उस डे 1 पे सोचा था।
मैं इस रूल की कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए काम करे। पर इतना तो आपने भी हर जगह पढ़ा है कि एक दिन के लिए तो मेहनत हर कोई कर सकता है, लेकिन डिफरेंस तब बनता है जब आप हर रोज उतनी मेहनत करना मेंटेन कर पाए। अक्सर जब लोग आपकी जिंदगी में आते हैं ना, तो आपको लगता है कि उनके आने से आपकी लाइफ आसान हो रही है या आप अपनी मुश्किलों से बेहतर ढंग से लड़ पा रहे हो। बट एक्चुअली आप अकेले हो या आपके साथ में कोई है, दोनों ही कंडीशंस में आपकी मुश्किलों से मुकाबला करने वाले आप ही होते हो। तो ये सोचना कि किसी का साथ पाने या ना पाने से आपकी जिंदगी पर, आपकी मुश्किलों से लड़ने की ताकत पर कोई असर पड़ रहा है, ये एकमात्र मनोवैज्ञानिक खेल है। सच तो ये है कि यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन व्हेन यू आर अलोन, यू आर बेटर व्हेन यू आर अलोन, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू फील लूजर। खामोशी यहाँ कोई समझता नहीं और बयान करने का तुम्हारे पास वक्त नहीं। जब सबको लगता है ना कि चारों तरफ सन्नाटा है, तभी किसी तूफान का आगाज होता है। अभी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सब तुम्हारा साथ छोड़ गए और तुम्हारे चारों तरफ सन्नाटा हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर का तूफान कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हारी मेहनत जितनी शांति से होगी ना, उतना ही धमाल तुम्हारी सफलता मचाएगी, और जितना धमाल तुम्हारी सफलता मचाएगी उतना पाना तुम्हारा हक भी है। खोल दे पंख अपने ए परिंदे, तुझे इंतजार किसका है, निकल जा उस रास्ते पर जिस रास्ते को इंतजार तेरे जैसे मुसाफिर का है। चुन ले एक ध्वज पताका और लहरा दे तेरे सपनों की चोटी पे, भले ही तेरे पांव फिसले उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, बट ये मत भूलना कि अगर तू सफलता पे हक नहीं जमाएगा तो कोई और वहां तक पहुंच जाएगा। जिंदगी एक ऐसा युद्ध है जहां हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। जितने भी युद्ध होते हैं ना, वो सब मनोवैज्ञानिक होते हैं। जिंदगी एक ऐसा युद्ध है जहां हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। यहाँ दुनिया से नहीं, खुद से जीता जाता है। यहाँ दूसरों को दबाया नहीं, खुद को उठाया जाता है। यहाँ दूसरों से उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि दूसरों के सामने उदाहरण पेश किए जाते हैं। उनसे ऊपर उठना होता है। जब भी मेरी जिंदगी में कोई तूफान आता है ना, तो मेरे अंदर का एक गुमनाम शायर कहता है कि राख मेरी चिता की थोड़ी संभाल के रखिएगा, राख मेरी चिता की थोड़ी संभाल के रखिएगा, जल ना जाए एक अरसे बाद फिर से तो कहिएगा, जल ना जाए एक अरसे बाद फिर से तो कहिएगा। और दोस्तों, सच भी है कि जब खुद को मेहनत में इतना जला दोगे ना, तो उस आग की तपिश से कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा। यार, जब तुम अपने सही समय का इंतजार कर रहे होते हो ना, तो उस वक्त एक चीज तुम्हें समझनी चाहिए कि तुम्हें अपना समय चाहिए या अपना दौर चाहिए, अपना जमाना चाहिए। तुम्हें सफलता का थोड़ा सा समय चाहिए या फिर एक पूरा जमाना चाहिए जिस पे केवल तुम्हारा हुक्म हो। इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो अपनी खामोशी की उस अनंत ताकत को जो इस पूरी दुनिया में शोर मचाने वाली है, जिस नाम को आज कोई भी नहीं जानता। वो हो सकता है आने वाले समय में हर एक बच्चे की जुबान पे चढ़ जाए। उदाहरण बहुत सारे हैं, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर और ऐसे ना जाने कितने सारे नाम हैं जो अपने आप में एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नेम भी आने वाले समय में एक ब्रांड बन जाए, तो इस जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। बट अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो में कही गई बातों को एक बार फिर से सुनकर अपनी जिंदगी पर अप्लाई जरूर करें। हो सकता है इससे आपकी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि कईयों की जिंदगी में उजाले की एक किरण है, और देश में उनका ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी जीत फिक्स करने के लिए एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।